Hello everyone. Good morning to all. Yes, class. In previous class, we completed all the explanation and all the methods we understand of this chapter. This is the chapter number 5, separation of substances. We discuss all the method in previous class. Okay, just like filtration, sedimentation, decantation, evaporation, condensation. Okay. Now in today's class, we discuss all the question answer of chapter 5, separation of substances. Now let's start. First question is question number 1, multiple choice questions. Okay, butter is separated from milk by. Butter को कैसे separate किया जाता है? ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू, फिल्टरेशन, चर्निंग या डिकेटेशन. तो आंसर इज चर्निंग. चर्निंग मीन्स होता है बेटा मतना. आपने कभी मम्मी को ग्राइंडर की हेल्प से या एक वुडन स्टिक होती है उसकी हेल्प से जो है बटर को सेपरेट करते हुए देखा होगा. तो वो जो मेथड होता है उसको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं? चर्निंग. Next one is filtration is a method to separate the component of, and where we use the filtration method, where the mixture of a liquid as an insoluble substance है. लिक्विड सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या insoluble substance जो है अगर soluble होगा तो when we filter no residue is there. Okay, but we take a liquid, उसके अंदर क्या होगी insoluble substances होंगे, तो then we use a filtration method to separate both the substances. Okay, now next one is threshing is done by beating, bullocks machine, all of these. तो हम threshing beating के थ्रू भी, bullocks के थ्रू भी and machines के थ्रू, तीनों के थ्रू करते हैं. तो आंसर इज all of these. Next question number 4, which method is used to separate pebbles and stones from sand? Okay, first one is hand picking. देखिए पेबल्स और स्टोन को सैंड में से हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? देखिए पेबल्स और स्टोन और सैंड तीनों को क्या है कि जो सैंड है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, पेबल्स और स्टोन थोड़े साइज में एनलार्ज होते हैं कंपैरिजन टू सैंड. ओके, तो हियर वी यूज अ सीविंग मेथड. सीविंग मेथड में हम ये कहते थे जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको सीविंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर लेते थे. फर्स्ट वन हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग या एनी ऑफ दिस. आंसर इज सीविंग. Okay, next one is the component of a solution can be separated by. जो component है solution के may be sugar in water. Sugar in water, water के अंदर sugar mix है, soluble है, उसको हम कैसे separate कर सकते हैं? First process is filtration, evaporation, sedimentation and decantation. Our answer is evaporation. Evaporation के through क्या होगा? Water convert into a water vapor और जो remaining चीज क्या रह जाएगी? Sugar. Okay, next one is sand from water is separated by sieving, evaporation, filtration, sedimentation and decantation. Okay, so sand and water, as we all know, sand or water are not soluble each other और एक दूसरे में soluble नहीं होते. Sand is insoluble in water, so that's why sand or comparison to water, sand is heavier than water, so we use a sedimentation and decantation method. नेक्स्ट वन इज 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड. देखिए इसमें अपन ने लिखा था कि एक कूल प्लेट को जो केटल है उसके पास में रख दिया था ना, तो वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन. उसको किस में चेंज करते हैं? कंडेंसेशन में. तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? ठीक है, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन. Just opposite, when water vapor convert into a liquid on cooling is called a condensation. Okay, now we move to a 9, the process of conversion of water into a vapor is called a evaporation. Same बात आ गई कि water convert हो रहा है किसके अंदर? water vapor में. So this process is called a evaporation. Now next one is filling the blanks. The method of separating seeds of fatty from its stalk is called a threshing. Yes. Second question is when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. Cream means malai. Okay. The process of separating cream from milk is an example of filtration. अब milk से हम उस cream को separate करेंगे. Which method we use here? Filtration method. Next one is salt is obtained from sea water by the process of evaporation. हम salt को भी sea water से कैसे separate कर सकते हैं? Evaporation method के through. Okay, next one is impurities settle down
At the bottom, when muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top. The process of separation, देखिए sand जो है water में mix होगी, हमारे पास वही method है sedimentation and decantation, भले वो एक bucket water हो, भले वो एक glass water. Okay. Now we move to a true false. A mixture of milk and water can be separated by फिल्टरेशन. मिल्क और वाटर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? नो, बिकॉज बोथ आर सॉल्युबल ईच अदर, दोनों मिसेबल है ना. लिक्विड्स के लिए हम मिसेबल वर्ड यूज कर देते हैं सॉल्युबल की जगह पर, तो बोथ आर मिसेबल, तो दैट्स व्हाई वी डोंट सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ काम आएगा? जहां पर एक सब्सटेंस क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा. ओके. A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. सॉल्ट और शुगर जो है उनको सेपरेट किया जा सकता है विनोइंग प्रोसेस से. नो, विनोइंग प्रोसेस में क्या होगा? एक सब्सटेंस जो होता है वो हैवियर होता है, अदर सब्सटेंस क्या होता है? लाइटर इन वेट होता है. तो वहां पर हम विनोइंग मेथड यूज करते हैं. तो आवर आंसर इज फॉल्स. Separation of sugar from tea can be done with a filtration. Separate sugar, टी से शुगर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं. नो, टी लीव्स से सेपरेट करने के लिए तो हम फिर भी फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं. शुगर तो टी के अंदर क्या होती है? टोटली सॉल्युबल होती है. तो आवर आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. नो, ग्रेन कैसा है? हैवियर पार्टिकल है. हस्क कैसा है? लाइटर पार्टिकल है. तो वी सेपरेट both of them with winnowing process, not a decantation process. So that's why our answer is false. Next है match the following. Separate stone from rice. आप राइस को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो? तो फर्स्ट हो गया, सी नंबर पे आ जाए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेस. भाई पर्पस क्या है? भाई स्टोन कोई यूजफुल है क्या हमारे लिए? नो. तो पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. तो इसमें एक बताना है आपको ये मैचअप्स में कि भाई सेपरेशन प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया हुआ है. तो नेक्स्ट आपको उसका पर्पस शो करना है. नेक्स्ट जो सेपरेटेड कंपोनेंट है वो हमारे लिए क्या है? सेपरेटेड कंपोनेंट हमारे लिए यूजफुल है और नहीं है, वो हमें एक्सप्लेन करना है. ओके. तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. जो स्टोन से हम उनको संभाल के तो नहीं रखते, हम उन्हें फेंक देते हैं. नेक्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. देखिए हम जो बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं तो बटर भी यूजफुल है, मिल्क भी यूजफुल है. ठीक है. तो वी यूज बोथ द कंपोनेंट. तो जब हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हम दोनों कंपोनेंट्स को, मिल्क को भी और बटर को भी, दोनों को यूज करते हैं. सेपरेट टी लीव्स. सेपरेट टी लीव्स के अंदर देखिए टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि जो टी लीव्स हैं दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस. और फिर बाद में हम क्या करते हैं? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. जो टी लीव्स हैं उनको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं. ओके. दिस इज द पार्ट ऑफ chapter 5 part 1. Now we move to our part 2. Why do we need to separate different component of a mixture? Give two example. Among different component of a mixture, many substances are harmful or not useful for us. Why we need to separate the component? तो ये आंसर है इसका कि भाई हमें जरूरत क्यों है चीजों को सेपरेट करने की, हम उनको वैसे ही क्यों नहीं यूज कर लेते. तो पहला चीज ये है कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, नॉट यूजफुल सब्सटेंसेस है, उसको अपने मिक्सचर से क्या करना है? रिमूव करना है. टू रिमूव दीज हार्मफुल कंपोनेंट वी नीड टू सेपरेट देम. फॉर एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. तो हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से. Next is stone piece from wheat, rice and pulses are picked out by hands. तो stone pieces जो हैं wheat, rice, pulses में से हम hand picking method के through separate करते हैं. Now second question is what is winnowing and where is it used? Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture. एक mixture के अंदर two type के component है, first heavier है, second lighter है, where we use a winnowing process. This process is used to by farmers to separate lighter husk particle from heavier seed grain. तो इस winnowing process को use करके farmers क्या करते हैं? जो lighter husk particle है उनको separate कर देते हैं. कहाँ से? From heavier seed of grain. 87. Okay. Now question number. Question number 3rd.
How will you separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking? To separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking, we need to wash the pulses with water. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पल्सेस को के अंदर कुछ हस्क पार्टिकल है या डर्ट पार्टिकल है, तो आपने देखा होगा घर पर भी मम्मी जब भी दाल वगैरह या पल्सेस वगैरह कुक करते हैं तो पहले उसको वॉश कर लेती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो कीप फ्लोटिंग इन वाटर, जो हस्क पार्टिकल है लाइटर इन वेट होते हैं तो पानी के ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड पल्सेस ग्रेन विच सेटल, और जो पल्सेस हैं वो सेटल डाउन हो जाती है, सो वी कैन इजीली रिमूव देम। Next question is question number 4. What is sieving? Where is it used? Sieving is a process by which the fine particles are separated from bigger particle by using a sieve. Sieving के अंदर क्या करते हैं हम, फाइन पार्टिकल को और बिगर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम सिविंग मेथड यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फ्लोर मील as at construction site. In flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed from sand by sieving. तो यहाँ इन सब जगह पर हम sieving method यूज करते हैं। Now we move to question number 5. How will you separate sand and water from their mixture? आप सैंड और वाटर को मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे? वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। कौन सी मेथड से? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फ्रॉम सम टाइम। जो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम कुछ समय के लिए ऐसे ही सेटल होने के लिए रखेंगे। आफ्टर सम टाइम द सैंड क्या होती है, कंपैरिजन टू वाटर हेवियर होगी तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी एट द bottom. After that we will pour water into another container and the mixture will be separated like this. ये जब हमारा sedimentation process है first picture, and second one is decantation. Next is question number 6. Is it possible to separate sugar mixes with wheat flour? If yes, how will you do it? अगर शुगर के साथ में हम व्हीट फ्लोर जो है वो मिक्स हो जाएगा तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखिए शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैरिजन टू व्हीट पार्टिकल्स क्या है, साइज में बिग है, और जो फ्लोर है उसके फाइन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सीविंग मेथड यूज करेंगे। शुगर कैन बी सेपरेटेड व्हीट फ्लोर बाय सीविंग ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल। शुगर विल स्टे ऑन sieve and the wheat flour will pass through it. Now question number 7. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? We will obtain a clear water from a sample of a muddy water by the process of filtration. First we do it sedimentation process, then decantation process. अब decantation process के अंदर जो भी हमारे पास में water आया है उसको हम कौन से मेथड में ट्रांसफर करेंगे? फिल्टरेशन मेथड में। इसमें फिल्टर पेपर लेंगे, उसको कोन बनाएंगे फनल शेप का करके, जो भी हमारा मडी वाटर है वो उसके अंदर हम पोर कर देंगे। तो फिल्टरेशन प्रोसेस के अंदर से वाटर आगे पास आउट होता है, जो भी रिमेनिंग रेसिड्यू होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, question number 8. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar and water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to lemonade before and after dissolving sugar? In which case you would be possible to dissolve more sugar. तो हम more sugar कैसे कर सकते हैं? हमने कल solubility के possibilities देखी थी कि कैसे एक saturated solution बनता है। After saturated solution बनने के बाद भी हम उसके अंदर और solute कैसे mix कर सकते हैं to increase the temperature. तो वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। हम हमेशा वाटर शुगर जब डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद में ही आइस को ऐड करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज हायर देन मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, क्योंकि जब तक टेम्परेचर हाई रहता है ज्यादा से ज्यादा शुगर उसके अंदर क्या रह सकती है? डिसॉल्व। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट कूल एंड लेस शुगर विल डिसॉल्व इट। अगर हम पहले से ही आइस को ऐड कर देंगे अपने वाटर के अंदर तो उसमें शुगर जो है बहुत कम डिसॉल्व हो पाएगी, ठीक है। Next extra questions. Write various method of separation of component from their mixture. So in this chapter we discuss all of the methods. First, hand baking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, and evaporation and condensation. Okay. Now second question, define the term hand baking. The process we use separate slightly larger particles. जो थोड़े से larger particles होते हैं mixture में से by hand. This process is called a hand picking. Okay, so we pick and throw it with our hand. This process is called a
and picking process. Okay. Now question number 3. What do you mean by threshing and where it is used? Threshing is a process in which we separate grains from stalk. The process is called a farmer to separate grain, wheat, rice, mustard seed in his field. देखिए ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए स्टॉक्स को हार्ड सब्सटेंस पे बीट किया जाता है. नाउ वी यूज अ थ्रेसिंग मशीन आल्सो. ठीक है, तो जिसमें व्हीट ग्रेन्स और हस्क पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ विल यू सेपरेट ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? आप ऑयल और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? हाउ यू डू इट? तो ऑयल बिंगिंग लाइट वाटर हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 4 में पढ़ा था. Some substances are miscible or some substances are immiscible. तो water and oil both are the immiscible. ठीक है, तो ऑयल की जो सेपरेट लेयर एक फ्लोट करती है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर. तो ऑयल मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर, थोड़ी देर के लिए हम उसको लीव होने देते हैं तो ऑयल बिल्कुल फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ. तो हम इस प्रोसेस से यहाँ से ट्यूब को ओपन करेंगे, नीचे का जितना भी वाटर है हम अदर बीकर में सेपरेट कर लेंगे और जैसे वाटर आने लगेगा यहाँ से लॉक कर लेंगे. ये जो पूरा मेथड है ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का. तो ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर, ऑयल क्या होता है? वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है. विल फ्लोट ऑन इट, जो उसके ऊपर फ्लोट करता है. Two distinct layers are formed and slowly oil is allowed to flow into another container. तो सबसे पहले ऑयल और वाटर की 2 लेयर्स बन जाएंगी. तो हम स्लोली क्या करेंगे? एक अनदर कंटेनर में वाटर को सेपरेट करेंगे यूजिंग दिस फनल. एंड सेपरेटिंग फनल कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द टू. तो इस टूल को, इस पूरे उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल. ये जो आपको फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं. तो ऑयल और वाटर को हम किसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल के थ्रू. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज इवेपोरेशन? The process of conversion of water into a water vapor. ऐसा प्रोसेस जिससे वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. This process takes place continuously where water is present. Common salt from sea water is obtained using this method. हम इसमें common salt को sea water से separate कर सकते हैं through this process. Next है question number 7. Describe the method to obtain salt from sea water. सी वाटर से सॉल्ट को कैसे मिक्स किया जाता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट. जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होता है. वन ऑफ देम इज कॉमन सॉल्ट. उसमें से एक क्या है? कॉमन सॉल्ट भी है. When sea water is allowed to stand in shallow pits, जो सी वाटर है उसको shallow pits में ट्रांसफर कर दिया जाता है. वाटर गेट इवेपोरेटेड बाय सनलाइट. सनलाइट के थ्रू वाटर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा. In a few days the water evaporate completely, leaving behind the solid substance. पीछे की तरफ क्या रह जाएगा? Solid substance या solid salt रह जाएंगे. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. अब इस प्रोसेस से जो हमारे पास में salt आता है उसको हम further purification के बाद में proper use करते हैं. Next question number 8. What is decantation? Decantation is a process separating of insoluble solids. डिकेंटेशन प्रोसेस हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर सैंड और वाटर की बात आती है, क्योंकि सैंड कहाँ है? वाटर में मिक्स नहीं है. यानी इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, वेयर वी यूज द डिकेंटेशन process. The suspension of solid particle in liquid is allowed to stand from some time. The solid particle then settle down at the bottom of the container and clean water goes up without disturbing settling particles. Clean water is transferred into another container. Okay, that's all about this chapter.